Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start with today the last part of ionic equilibrium. Okay. And what was remaining, beta? Today we are going to study few things. First, three concepts we are going to do: solubility, solubility product, and ionic product. Solubility word se kya? What comes to your mind when you talk about solubility? Suppose I have taken water in this solvent, fixed amount. Suppose if this is 100 gram of solvent. So how much maximum solute I can add to it? That is known as what, beta? Solubility. Of course, whenever we talk about solubility, we'll talk about, the soluble salt. Clear? So maximum amount of solute which can be added at a given temperature. Why we have to mention the word given temperature? Because if temperature changes, solubility changes. Beta, did you miss any class of ionic? Which part you missed? Just something. But this part is totally different, beta. Don't worry. Okay. Right? Now, if I want to express solubility, what will be the unit? Suppose if I'm adding 1 mole in 1 liter. So what will be the unit? Mole per liter. Okay. पर लीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, क्या नहीं बोलो बेटा? So mole per dm cube is the unit of solubility. Now, what is this solubility product? And this ionic product. Okay. So now in our life we have beta salt which are sparingly soluble. मतलब एकदम मैंने अगर मैंने इसके अंदर 1 ग्राम डाला ना तो कितना डिजोल्व होगा? 0.00001 ग्राम डिजोल्व होगा. तो इन सच सोल्यूशन देयर विल बी वन इक्विलिब्रियम. किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा? जैसे आई टेल यू बेटा, AgCl आप लोग ने पढ़ा रहेगा ना. सिल्वर क्लोराइड इज व्हाट बेटा? Insoluble. Silver chloride is what beta? But so this is insoluble, so it is will be in which state? Solid state. It will be in which state? But it will form few ions or not? Tell me. थोड़ा dissolve हुआ. Suppose इसमें से मैंने 1 ग्राम डाला तो कितना dissolve हुआ? 0.001 ग्राम. So it will form what beta? This ions. These ions it will form, but these ions will be very, 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 very less. So this will be in equilibrium. So this is which state beta? Solid. And this is what beta? Liquid. Right? Ions in there banega wo liquid. So there is an equilibrium between that. There is an equilibrium between these. So now what we are going to do for sparingly soluble salt, we use one term. We call it as what? Solubility product. Solubility product. ठीक है. So solubility product we are going to use. So how to find the solubility product? अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मैं जो भी नंबर डालूंगा ना बेटा, सपोज अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 ही आएगा ना बेटा. So whatever number, so KSP. So it is the product of the ions. It is nothing but what? Product of the ions. Who are the ions? Raised to their stoichiometric coefficient. So what will be here? Clear? Okay. So this is known as what beta? Solubility product. Now why we have to study about this solubility product? Okay. If you see beta, when you are taking the product of the ions, basically we are taking what? Product of the ions only. If you see beta, product of the ions. So this help us to determine whether I have given a, suppose I give you, a salt. I will give you two values to you. One value will be of ionic product and one will be of what beta? Solubility product. Okay. So if this part you have to remember beta. So this is always fixed. If your solubility product is more, then the precipitation won't take place. If your ionic product is more, then precipitation will take place. Now, what type of numericals they are going to ask based on this? Very simple numericals they will ask. They will tell you to determine a relation between solubility product and solubilities. Look here. Can you see first solubility equilibrium? This is first of all, this entire concept is applicable to what? With salt. Tell me बेटा, मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था. हाँ. सपोज इफ आई एम एडिंग 1 ग्राम तो उसमें से 0.0001 ग्राम ही डिजोल्व हो रहा है. देखिए एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे AgCl. कैन यू सी दिस? Very small amount dissolved. Most of the salt will remain what? Undissolved. Okay, right? And there will be equilibrium between, can you see, solid and ions, dissolved and undissolved part. And how we find that? We apply the formula of K, product में जो ions है upon reactant. If I take AgCl on this side, so this will be known as what? Solubility product. So solubility product is nothing but what beta?
प्रोडक्ट ऑफ द आयंस रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक। अच्छा, ये सॉल्ट में आगे क्या है बोल बेटा, देखिए सॉलिड है और ये एक्वस के बीच में, ये भी एक कौन सा सॉल्ट है बोलो, विच सॉल्ट इट इज, स्पेरिंगली। अच्छा, इसके आगे क्या है, बैलेंसिंग में क्या नंबर यूज किया है, तो देखिए रेज टू एक्स हो गया, इसके आगे क्या नंबर है बोलो बेटा, तो रेज टू। So now how do we define such this thing beta, solubility product? So saturated solution of sparingly soluble salt, the product of the concentration of the ions raised to the power which is equal to their coefficient. Right na beta? Respective coefficient in a balanced chemical equation which is at equilibrium is known as what? Solubility. So basically solubility product is what? It is nothing but the product of the ions, whatever ions, raised to their particular stoichiometric coefficient. In which equation? In equation which is in equilibrium. Equation in which is in what? Clear? Easy. Then solubility. For solubility, what term we are going to use? For solubility, what term we are going to use? S. What is solubility? मैंने पहले आपको क्या बताया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी डिजोल्व इन हाउ मच सॉल्वेंट, 100 ml, right? But in exam they will ask you what is molar solubility. So whenever they ask you molar solubility means what, we will talk in terms of 1 mole. So number of moles of a compound that dissolve to give 1 liter of its saturated solution is called as what? Molar solubility. तो मोलार solubility में 1 mole मतलब 1 mole कितना होता है बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर मास ना, तो वट एवर solubility will get, you will divide by what? Molar. You always divide by what? अब आपको बेटा मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके सम्स जो आएंगे उसके, they will ask you, they will give you one salt, okay, and they will tell you to write their solubility product. First, if you see here, this is barium and sulfate. Barium sulfate is what? Insoluble. Remember ना बेटा, insoluble salt होता है, sparingly soluble है. So what is KSP? Barium into sulfate का product. ये बेटा कैल्शियम फ्लोराइड में फ्लोरीन के आगे कितना है बोलो बेटा, तो क्या होगा, रेज टू द पावर, ओके, बेरिलियम सल्फाइड में, सॉरी, हाँ बेरिलियम सल्फाइड, सॉरी बिस्मथ सल्फाइड, आई एम सो सॉरी, बिस्मथ सल्फाइड, ये बिस्मथ का पावर इज हाउ मच श्रिया, टेल मी। अभी देखना यहाँ पर कितना है, बैलेंसिंग में 2 ना, तो रेस टू 2, सल्फाइड का पावर कितना है, रेस टू 3. सो दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन वी राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी एंड व्हाट, हाँ, तो इसका आंसर कैसे ढूंढने का बेटा, इधर आ जाओ. If I want to find KSP and solubility product का relation, what I'm going to do? Okay. KSP का formula क्या है? Any salt if it is there, what I write? X raised to X, Y raised to, and solubility raised to X plus Y. अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? अभी मैं आपको एक सॉल्ट दे देता, चलो बेटा आ जाते हैं. सॉल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी या बी ए, जो लिखना है लिखो, क्या लिखना है बोलो बेटा, ए बी. ये तेरा क्या होगा, सॉल्ट का बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर यूज होगा ना, एक्स और वाई, राइट. पहला सॉल्ट में देता हूँ बेटा, दिस इज द फॉर्मूला. सपोज आई गिव यू फर्स्ट सॉल्ट, फर्स्ट सॉल्ट मैंने कौन से फॉर्म में दिया है बेटा, ए बी, मतलब ए बी 1 होगा और बी भी कितना होगा, चलो बेटा एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, फर्स्ट का ए जी सी एल. नाउ या किया बेटा, यहाँ पे बता मुझे इसका केएसपी मुझे ढूंढना है, केएसपी का क्या फॉर्मूला बोलो बेटा, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे व्हाट इज दिस, 1. Y is also how much beta, so what I write, 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1, so what I'll get, s raised to 2. अगर मैंने आपको बोला therefore s का वैल्यू कितना होगा बोलो बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इजी, क्लियर है. अच्छा, एग्जाम में व्हाट दे विल आस्क, रीवा या नीवा, नीवा, in exam what they will ask beta, they will either give you value of KSP and they will tell you to find value of solubility, or they will give you value of S solubility and they will tell you to calculate
KSP. I'll give you another salt. Chalo. Next salt. Sit beta, I'm giving you next salt. Suppose if my salt is AB2. Example, I'm giving you calcium fluoride. So tell me what will be the relation for KSP? बता. बोलना भाई, x का वैल्यू कितना है हीरो? हाँ ये देखना बेटा, x का वैल्यू कितना है? 1. 1 रेस टू, लिख दूं क्या पहले? ये ले भाई बेटा, x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू, चलो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है? सो व्हाट यू विल गेट बेटा, राइट? सो व्हाट यू विल गेट 4, और ये क्या हो जाएगा? yes. So what is the formula of your, what is the relation between KSP and this thing? Understood? If I tell you to find formula of S, then how you are going to calculate? बोले श्रिया इधर देख, S करने का है ना, तो क्या करेगी बोल बेटा? KSP upon 4, and which root it will be? Very good. Clear? Anugrah, you tell me what will be for this. I'll give you, which one I'll give you बेटा? 3 वाला मैं दे देता तुम लोग को. 3 वाला कौन सा सॉल्व दिया है वो लोग ने? देखो बेटा, ये वाला 3 वाला किधर गया भाई? I'll give बेटा, यहाँ पे पीछे दिया है ना. हाँ ये ले बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. Tell me what will be the relation? 1:1. Then and S1 plus so what you'll get now? 9S. 9 and 3 into 3 into 3, 27. S raised to, therefore what will be the value of your S? And which root it will be? 4. Easy. Bolo. Sia, tell me what you will do for this if I have this like calcium phosphate. Sorry. My bad, beta. Yeah, here I'll put 2. So what you'll get? Tell me. 3 raised to 2 raised to 2. 3 plus 2. So what you're going to get? 4. 27 into 4 is how much, beta? So S, if I ask you what is the value of S, and which root it will be? 5th root. Easy. ठीक है, राइट? चलो नाउ एग्जाम में बेटा देखो यही सब आपको पूछेगा, ये देखा जाओ. I'll tell you, write this equation. चलो, I want all of you to do this on your own. इसका ढूंढो बेटा, ध्यान से करना है. क्या होगा बोलो? चलो भाई साथ बेटा ट्राई करना भाई. क्या है एक्स का वैल्यू यहाँ पर? लेट मी टेल यू वन थिंग. बेटा यहाँ पर मैं बता देता. देखो सिल्वर क्या होता है? वैलेंसी 1+. और ये कौन है? क्रोमेट. क्रोमेट का ये है बेटा, तो ये इधर पे जाएगा, ये इधर पे जाएगा, तो फाइनली व्हाट यू गेट बेटा? दिस का. लेट मी टेल यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बोलो? एक्स का वैल्यू बोलना साथ बेटा, ये एक्स होगा कि नहीं? हाँ तो ये एक्स हो गया. वेरी गुड. और y का वैल्यू 4 नहीं होगा बेटा. y का वैल्यू, अरे बेटा ये पूरा क्रोमेट का वैलेंस कितना था? 2. पूरा एक साथ में है वो. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू कितना होगा बेटा? ये इस ऐसा कुछ होता तो आता था ना बेटा. तो यहाँ पे कुछ नहीं, y का वैल्यू कितना होगा? 1. ये बहुत ध्यान रखने का, बच्चे ये गड़बड़ करते हैं. प्लीज राइट, एक टेक्स्ट बुक में लिख दो वहां पे अगर है टेक्स्ट बुक तो. पेज नंबर तुम्हारा क्या है? 59. हाँ 2 ना. अरे यार सो सॉरी, यार सो सॉरी, सो सॉरी. x will be 2. Page number 54. गलती लाइव दिख रहा है. पेज नंबर 54 पे आ जा बेटा. सॉरी सॉरी, मेरा पुराना टेस्ट हो गया. मेरा पुराना पेज नंबर 59. मेरा पुराना है, इसके 59 पे है बेटा.
पर दे लिखा जब दे मिला गया। सपोज बेटा अगर मैंने कैल्शियम सल्फेट दिया रहता तो क्या होता, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बताओ। KSP will be what? 2 raised to 2, right? 1 raised to 1, S 2 plus 1, तो डायरेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा? 4S क्यूब। क्लियर है? कैल्शियम फॉस्फेट का भी मैंने बताया था कि नहीं, बोलो। 3 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 2, एस 3 + 2, राइट। मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया तो आप इसका कर सकते हो। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता अच्छे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, x is 3, y is 2, here x is 1, y is 3। कर पाओगे? इजी, राइट। एकदम इजी फॉर्मूला, वो बस खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? एनी डिफिकल्टी क्लियर? आगे बढ़े पक्का। चलो अभी इसका बताओ क्या करोगे। रूहानी, रूहानी ना बेटा? सपोज बेटा मैंने तेरे को कैल्शियम सल्फेट दिया होगा, एक्स का वैल्यू कितना है बता। 1, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है ना, तो 1। अभी तेरे को याद रखने का, सल्फेट एक पूरा यूनिट है। हाँ, तो वाई का वैल्यू भी कितना होगा, 1। याद रहेगा ना बेटा? यू हैव टू सी द आयन, पूरा आयन कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? चलो अभी कितना इजी है बेटा, अभी ये वाला सम करेंगे। श्रिया दवे, इन्हें एक काम कर दे, सक्षम गुगे बोल बे, क्या पूछा है पढ़ यहाँ पे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, तो एक सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या दिया है आपको, KSP इज गिवन। कैलकुलेटेड सोल्यूबिलिटी पहला क्या बोला है, मोल पर डीएम क्यूब, फिर ग्राम, ग्राम पर डीएम क्यूब में हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोलार मास को इन्वॉल्व करेंगे। तो चलो मोल पर डीएम क्यूब में अभी ये सोल्यूबिलिटी AgBr, तो क्या फॉर्मूला होगा, KSP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x⁻x, y⁻y, s⁻, चल बेटा अभी बता x का वैल्यू कितना होगा AgBr में, x का वैल्यू 1, तो 1:1, 1:1 हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा, अभी तुझे पूछा क्या ढूंढने के लिए, सल्यूबिलिटी, मतलब तुझे क्या ढूंढना है, एस। तो अभी एस ढूंढने का, तो तू क्या करेगा, देयरफॉर एस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ KSP। अब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ KSP का वैल्यू कितना दिया है, कभी भी याद रखने का बेटा, भी है ना, कभी भी ये टर्म ऐसा होता है ना बेटा, ये 10⁻⁻13 स्क्वायर रूट रहेगा, और कभी भी ऑड नंबर रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करने का, इवन में करने का। किस में करने का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 52 इंटू 10⁻⁻14, अच्छा 10⁻⁻14 का क्यूब रूट क्या होगा बोल, हाँ -7। तो अभी अपने को क्या करना पड़ा, देयरफॉर माय एस विल बी व्हाट बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 52 इंटू व्हाट बेटा, 10⁻⁻7 बाहर आ जाएगा, फिर आप लोग स्क्वायर रूट इसका 52 का लेने का। क्लियर है? बोलो। राइट, इजी, ऑलवेज व्हेनेवर स्क्वायर रूट के अंदर और रहेगा। रूट ऑफ 52 कैसे लोगे बेटा, लॉग में रूट कैसे लेने का आता है, अच्छा मैं बता देता हूँ। लॉग टेबल में रूट होता है, लेकिन तुम लोग नॉर्मल वाला ही फॉलो करेंगे हम लोग बेटा। क्या करेंगे बेटा, लॉग में ये जो रहता है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं बेटा, फैक्टर निकाल। हाँ अरे रेस टू हाफ करने का इसको बेटा। हाँ तो इसको भी तेरा ये इसमें करने करेगा, तो एंटी लॉग ऑफ क्या करेगा बेटा, लॉग ऑफ 52 रेस टू हाफ, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, हाँ फिर उसका एंटी लॉग लेने का, समझा क्या, अरे बोलो पक्का। अच्छा 52 का एकदम ऐसे मेरे को पहले बताओ, ओरली का अगर हम लोग करने को जाएंगे तो विच इज द लोएस्ट स्क्वायर नंबर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ तो 40, मतलब 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा इसका। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी, बोलो भाई। क्लियर है? रिवा बेटा शैल आई इरेज दिस, देख बेटा
यहाँ पे आया कि नहीं, देखिए 7 पॉइंट समथिंग समथिंग 10 आया कि नहीं आंसर। सीईटी में रहेगा तो हम लोग ऐसा लॉग वॉग ढूंढने नहीं जाने का, इट वुड बी डायरेक्ट लोएस्ट स्क्वायर रूट का नंबर थे। क्लियर है। लेकिन एकदम कम सिमिलर वैल्यूज दिया रहेगा देन वी विल हैव टू कैलकुलेट। अब बेटा वो लोग ने किसमें बोला था, बोलो नेक्स्ट पार्ट। ग्राम में बोला था ना बेटा, तो ग्राम में ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। और मोलार मास वो लोग देंगे एग्जाम में। इजी, कितना इजी सब है बोलो। चलो बेटा अभी मैं तुमको ना यहाँ पे अनसॉल्व एग्जाम्पल इसमें से उठा के देता हूँ बेटा। ये देखो, पेज नंबर 61 पे आ जाओ। क्या दिया है बोलो। अरे ये तो सेम सभी दिया है, हाँ नहीं खाली नाम चेंज कर दिया है। क्या दिया है, सोल्युबिलिटी। अरे रीड ना बेटा, व्हाट इज गिवन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। या बेटा सॉल्युबिलिटी देखना, ये ऐसा दे दिया तो मतलब 1 1 है कि नहीं। तो तेरे को इतना पता चल गया कि नहीं कि एस पी इज इक्वल टू वॉट बेटा, एस स्क्वायर। देयरफॉर एस विल बी वॉट। हाँ अभी बेटा देखना ये वैल्यू देखना, अभी देख ऐसा मैंने बोला ना, ऐसा आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करें। तो इसमें कितना आ रहा है तेरा 5.2 इंटू, तो इसको तू कैसे लिखेगी, वापस वही करेगी ना, 52 इंटू 10 और को इवन करने का। फिर यहाँ पे क्या आएगा तेरा √52 इंटू 10 - 7। अभी तेरे को देखने का, अभी तेरे को फास्ट आंसर करने का है, तो 52 का लोएस्ट नंबर कौन सा है जो स्क्वायर होता है उसका, एग्जैक्टली 7 ना। अच्छा अभी 10 - 7 मिल गया, और 7 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो देखिए दो आंसर देखो, लेकिन यहाँ पे अपने को 10 - 7 आ रहा था, तो ए लिख दिया। इजी, देखो ओरली कर पाओगे ना, पक्का। कॉपी करना था बेटा। तो सॉल्विबिलिटी का सम देखा ना कितना इजी होता है बेटा, राइट। अब हम लोग बेटा ना एक एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 59 में ये आएगा बेटा, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। ओके नाउ, या ये 3 कंडीशन लिखना होता है बस, वो मैं सब बताऊंगा क्या है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो बेटा आ जाते हैं, चलिए प्रोसीड अहेड। नाउ आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में आज क्या बताया था, आई टोल्ड यू दैट वी शुड नो 3 थिंग्स। व्हाट आर 3 थिंग्स वी शुड नो, वी स्टडीड अबाउट 2 टर्म्स, व्हाट इज रिमेनिंग बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट, व्हाट इज रिमेनिंग। तो वही, you should have asked me question, so what is the difference between solubility product and ionic product? Okay, yeah, Alishka, I'm doing one reaction, look here beta, A B, this is the reaction. Okay, it is giving me A plus and B minus. Then initially let us say beta this was how much, this was 90 and this is how much beta, 10. अच्छा अभी रिएक्शन होते जा रहा है, so slowly slowly this will become how much, 80, 20, 70, 30. As the reaction proceed, beta, what will happen? They will get this 60, 40, and then 50, 50. Then this will be 60, 40. ऐसा होते जाएगा कि नहीं बोलो। धीरे धीरे रिएक्टेंट विल डिक्रीज, प्रोडक्ट विल इंक्रीज। अब क्या होता है इसमें, टिल हियर व्हाट एरो आई वाज राइटिंग। Shreya, Alishka, what will happen here when it is 50-50? Then it is in which state? Equilibrium state. यहां पर क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार 50-50 पे इक्विलिब्रियम होता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज एट 50-50 देयर इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैन बी एट 80-20 आल्सो, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। नाउ you tell me beta, here equilibrium is there, here there is no equilibrium, here also there is no equilibrium, can you see? अच्छा मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, सपोज यहाँ पे टाइम कितना था, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minute, 7 minute. I have plotted, I've done this in lab. Now tell me, if I take here product of the ions, if I take here what, till here, from here to here,
and here and here. In this particular part, the green part, is there equilibrium there, beta? Green वाले part में equilibrium नहीं है. So when I take the product of the ions, when I take product of the ions at any point other than equilibrium, then that product of ions will be known as what? Ionic product. It will be known as here also what beta? It is ionic product. But if I take the product of the ions at the equilibrium, then it will be known as what? Solubility product. Then it is known as. So if I tell you to define what is ionic product, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? चलो थोड़ा दिमाग लगाओ. It is nothing but the product of ions only. But at which point? At any point other than equilibrium. Right? Other than because जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको आयन वी कैन नॉट कॉल इट एज व्हाट बेटा सॉल्युबिलिटी. क्लियर. अब वापस वो सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं वेयर दे हैव रिटन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड solubility product. Okay, solubility product is the product of the ions of the spherically soluble salt at what? At equilibrium. And what is ionic product? It is the product of the ions at any point other than. आ जाओ यहां पर देखो बेटा, अब पढ़ो ये पाठ क्या लिखा है. हेलो. अरे यार चलना भाई. हाँ अरे सक्षम देख क्या लिखा. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इन द सेम वे एज व्हाट. The only difference is that the ionic product expression contains the concentration of ion under any condition other than equilibrium. Other than अगर इक्विलिब्रियम पे लेगी तो वो क्या बन जाएगा? Solubility product. Clear? Easy? Okay. Now सिट बेटा. रिक्शे में बैठा है कभी? रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में सब लोग बैठे हो ना. एज पर द आईपीओ. एज पर द आईपीओ क्या यार, आईपीएल से आईपीओ आ जाए. एज पर द आरटीओ रूल रिक्शे के पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं? फोन बाद में देख बेटा. ऑटो रिक्शा के पीछे कितने में लोग बैठ सकते हैं? ठीक. तो दे दो दिस इज एज पर द आरटीओ रूल, दैट इज व्हाई. ठीक है. इमेजिन. ऐसे तुमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताता है. ये कौन है बेटा? पब्लिक विच इज गोइंग टू सिट. एंड दिस इज व्हाट बेटा? फिक्स बाय आरटीओ. कितने लोग बैठ सकते हैं? ठीक है ना बेटा. अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट केस देखते हैं. चलो बेटा. केस नंबर 1. रिक्शे की सीट में पीछे 3 लोग बैठे. कितने लोग बैठे? एक जन बैठा. तो कौन बड़ा है? अरे ये पब्लिक, कितना पब्लिक बैठा बोलो. लेकिन कैपेसिटी कितने का था? तो कोई नीचे गिरेगा क्या? पीछे 2 जन बैठेंगे. तो कौन ज्यादा है बोलो बेटा? कैपेसिटी केएसपी इज मोर. हाँ, तो ये केस में कोई बाहर गिरेगा क्या रिक्शे से? नहीं. तो उसको हम लोग क्या, ये जब कंडीशन होता है मींस व्हाट बेटा. और अंदर जब अगर अंदर एक जन बैठा तो और एक और 2 लोग आ सकते हैं कि नहीं? अगर अंदर 2 लोग बैठा तो और एक जन आ सकता है कि नहीं? तो वो सोल्यूशन के अंदर में और सोल्यूट. इमेजिन नाउ दिस कैपेसिटी दैट केएसपी इज नथिंग बट व्हाट द कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट. अगर तुमने कम सोल्यूट डाला तो और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं? The solution in which more of a solute can be dissolved is known as which solution? Unsaturated solution. What it is? अब इमेजिन नेक्स्ट केस. कनिष्क कैपेसिटी कितने का था बोलो बेटा? 3 लोगों का. बैठे भी कितने लोग हैं? 3. तो दोनों सेम हो गया कि नहीं बोलो? यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं? 3. और यहाँ पे भी कितना लिया मैंने? 3. तो अब क्या हो जाएगा? और अभी पीछे बैठने के लिए जगह है क्या? तो क्या हो जाएगा? हाँ, सैचुरेटेड. क्या मैं कर रहा हूँ ये? जो इसका कवर लिया ना. सैचुरेटेड सोल्यूशन.
एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, अभी इमेजिन बेटा, पीछे 3 लोग ऑलरेडी बैठ गए, रूहानी कितने लोग बैठ गए? तो अभी तुम लोग 3 जन बैठो, मैं आके बोलूंगा अरे अंदर बैठ. तो मैं ऐसा धक्का मारूंगा तो ये जो बाहर बैठा है वो बाहर गिरने का चांसेस है कि नहीं, बोलो बेटा? एज पर द आरटीओ रूल. ए श्रिया, एज पर द, हाँ ये गांव खेड़े की बात नहीं चल रही. वहां पे एक ही रिक्शे में 10 जन बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा बैठा ड्राइवर ऐसा चलाता है, पता है. लेकिन अच्छा, इसमें इफ फोर्थ पर्सन विल ट्राई टू सेट, तो वन फेलो विल फॉल डाउन और नॉट, टेल मी. तो इफ माय आयनिक प्रोडक्ट कितना था, पीपल सेटिंग इज हाउ मच बेटा? 4. एंड माय केएसपी इज हाउ मच बेटा? 3. कैपेसिटी 3 के साथ अभी क्या बढ़ गया बोलो? आईपी बढ़ गया. आईपी बढ़ेगा तो डिसॉल्व होगा क्या? तो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन. ये एग्जाम में पूछते हैं बेटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए. ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब ये कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में? आईपी आईनी प्रोडक्ट है बेटा. यार अभी स्टार्टिंग में तो बताया, इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59, कैन यू सी कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन. उसमें 3 कंडीशन दिए, देखो दिखाओ क्या. तुम लोग को याद रखना है तो ये ऑटो रिक्शा वाला एग्जाम्पल याद रखना. पीपल सिटिंग इज गॉट पब्लिक ना, तो आईपी एंड कैपेसिटी इज हाउ बेटा? 3. अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये क्यों हमको पढ़ना है, वाई? बिकॉज इन एग्जाम दे विल गिव यू न्यूमेरिकल बेटा, वेयर दे विल गिव यू 2 वैल्यूज. एमसीक्यू में कैसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल गिव यू 2 वैल्यूज. आई विल गिव यू वैल्यू ऑफ व्हाट? आईपी. एंड आई विल गिव यू वैल्यू ऑफ केएस. और मैं बोलूंगा बताओ प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं, तो दोनों का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करने का, दोनों का वैल्यू को कंपेयर. अगर अगर केएसपी तुम्हारा आईपी अगर बड़ा है तो क्या होगा? अगर कम है तो क्या होगा? नो प्रेस. बस इतना ही पूछ, इजी. या फिर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस थिंग, सैचुरेशन. सैचुरेशन का ये क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर, आईपी शुड बी इक्वल टू व्हाट? ओके, अनसैचुरेशन के लिए. अच्छा, एग्जाम में ना मैं आपको ऐसा 4 वैल्यू दे, मतलब आई गिव यू द वैल्यूज ऑफ आईपी एंड दिस थिंग. सपोज आई गिव यू 4 वैल्यूज ऑफ आईपी. फिर मैं बोलूंगा एट व्हाट पॉइंट द प्रेसिपिटेशन में टेक प्लेस, और एक में केएसपी का वैल्यू एक सिंगल दूंगा. तो आप कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो 4 में से? हाँ, आईपी शुड बी मोर देन व्हाट? केएसपी. क्लियर, इजी, राइट. ये मार्क कर दो बेटा, यहां पर आ जाओ. टन टन. ये 3 कंडीशन देख रहा है कि नहीं? हेलो, राइट, क्लियर. अभी बेटा एक इसका न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा. ये देखो यहाँ पे आपको एक सम रहेगा यहाँ पे. आयनिक प्रोडक्ट वी हैव डन, हाँ बेटा, सॉरी, कॉमन आयन इफेक्ट वी हैव डन. चलो, नाउ दिस न्यूमेरिकल यू सी बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 ही न्यूमेरिकल है इसमें, आई थिंक तुम्हारा तो एक ही है इसमें. ये वाला सम देखो बेटा क्या दिया है. ओके, यहाँ पे आ जा. ए श्रिया दवे, यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला सम देख बेटा, पेज नंबर 59 पे एक ही सम है. हाँ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 mgCl2 एंड 0.3 मोलार सोडियम ऑक्सलेट. हाँ, at 293 Kelvin. एंड व्हाट दे हैव टोल्ड, वुड Mg2O precipitate आउट और नॉट, एंड व्हाट वैल्यू दे हैव गिवन. a हाँ नहीं नहीं, ये किसका दिया है वो, लेकिन Ks क्या केएसपी का वैल्यू दिया है, तो तुझे क्या ढूंढना है बोलो बेटा? आईपी का वैल्यू ढूंढना है. क्या ढूंढना है बोलो? हाँ, आईपी का वैल्यू ढूंढना है. आईपी में अच्छा, वो लोग ने बोला किसका प्रेसिपिटेट होने वाला है कि नहीं, बोलो Mg2C2O4. तो ये सम कैसे करोगे, पहले हम लोग आ जाते हैं बेटा. हम लोग ने किस किस को मिक्स किया है बोलो बेटा? अरे किधर गया है, हेलो.
श्रिया नहीं, श्रिया नहीं, ये क्या नाम है बेटा, सिया, सिया। सिया बेटा टेल मी, हम लोग ने किसका मिक्स किया, किस किस को मिक्स किया बता मुझे। 0.1 मोलार कौन है बोलो, MgCl। किसके साथ मिक्स हो रहा है, हाँ, सोडियम ऑक्सलेट। अच्छा मैं तुमको बता देता हूँ, ए लिसन लिसन, ऑक्सलेट का वैलेंसी कितना है, ऑक्सलिक एसिड में से, ये ऑक्सलिक एसिड होता है, देखो बेटा COH दिख रहा है कि नहीं, इसमें से मैंने HH निकाल दिया, तो माइनस माइनस, तो देख C2O4 2 माइनस, ए डबल डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, Na इसके साथ रिएक्ट होगा और ये इसके साथ होगा, तो क्या मिलेगा बोल बेटा, Na, हाँ 2NaCl बन गया, गया इसको जाने दे। अब बचा क्या तेरे पास, Mg का वैलेंसी कितना होता है बोल बेटा, 2+, ऑक्सलेट का भी कितना है, हाँ, तो तेरे को क्या मिलेगा, MgC2O4, बरोबर है। हमको अभी ये आयनिक प्रोडक्ट किसका दिया, KSP वो लोग ने किसका दिया है, MgC2, तो अभी मुझे आयनिक प्रोडक्ट किसका ढूंढना पड़ेगा, उसी का ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। अभी MgC2O4 को अगर तू ऐसा लेगी बेटा, ठीक है, और इसको डिसॉल्व करेगी, तो तुझे क्या मिलेगा, Mg2+ एंड व्हाट बेटा, राइट। अरे और ऑक्सीलेट ना बेटा, तो अभी तुझे IP करना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा बोल, बस इसका आंसर ढूंढना है, किसका ढूंढने का है, IP का वैल्यू। तो उसके लिए तुझे सबसे पहले किसका कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा बोलो, Mg2+, फिर किसका ढूंढना पड़ेगा, C2O4 2 माइनस, फिर वो लोग वैल्यू देखने का, वो वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे श्रिया, IP को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे बोल, KSP. हाँ, अगर ये वैल्यू इससे बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट, लेकिन अगर कम होगा तो नहीं होगा। इतना समझ में आ रहा है, मैं क्या चाहता आप लोग बेटा, थोड़ा पेंसिल से ना, मतलब आप पहला ये थोड़ा ये लिख लो, पहला ये दोनों को मिक्स किया ना, तो ये दोनों को मिक्स करके मुझे ये दोनों चीज मिली, पेंसिल से वहां पे लिख लो वरना आपको समझेगा नहीं। वहां पे लिखना पेज नंबर 59 पे, नीचे जगह है बहुत सारा, बेटा टेक्स्ट बुक लेके आने का सेक्शन बेटा, कैसा चलेगा, तो नाइस हैकट ब्रो। मेरी देखी आएगा 59 आपने है ना, लगती है ना, हाँ, जो पहला Already so. वो सॉल्व नहीं समझेगा, उसमें तेरे को Mg कहां से आया, वो कहां से दिया है कुछ, तो फिर क्या कॉपी करना है, पहले पहले इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो मुझे ये मिला, और इसी को हम लोग लेके यहाँ पे यूज करते हैं। अरे वरना वो तुमको MgC2 4 कहां से आया वो समझा क्या, वो मिक्स किया है ना दोनों का। अरे दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड हम लोग को क्या ढूंढने का है, IP ढूंढने का है। फिर ये IP का वैल्यू हम लोग किससे कंपेयर करेंगे बोलो बेटा, ये देखिए लेकिन अभी उससे भी पहले 2-3 स्टेप बाकी है, इससे दोनों को कंपेयर करने का। इफ KSP IP इज बिगर देन ओनली प्रेसिपिटेशन, अभी बेटा मैं जब दो चीजें मिक्स करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, मतलब ओवरऑल का मेरे को लेना पड़ेगा कि नहीं, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। वो लोग ने एक वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है, हाँ, अभी हम लोग को व्हाट वी हैव टू डू, अलिश का फर्स्ट आई वांट टू फाइंड व्हाट बेटा, Mg का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, और किसका चाहिए बोलो, हाँ, चलो इतना हो गया कॉपी। अब ये कैसे, क्योंकि ये पढ़ोगे डायरेक्ट यहाँ पे समझेगा बेटा, मैंने ये लिसन बेटा, ये मैंने एक 1 लीटर लिया और एक 1 लीटर का बॉटल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, तो अभी वॉल्यूम डबल हुआ कि नहीं, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ, समझ में आता है। यहाँ पे ना ये इक्वल पे ऐसा, इक्वल वॉल्यूम को ऐसा सर्कल करो, इक्वल, तो अभी मैंने ये अलिश का मैंने 0.1 मोलार को इसके साथ किया, दोनों का वॉल्यूम क्या लिया मैंने, तो ये 0.1 मोलार और के अंदर और 1 लीटर आएगा, तो इसका वॉल्यूम ये कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, लेकिन तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा ना भाई। तो अभी Mg2+ को मैंने क्या किया, Mg2+ का वैल्यू कितना था बोलो, अच्छा ये दोनों सॉल्ट है पता है ना, तो सॉल्ट पूरा डिसोसिएट होता है, सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट अगर पूरा डिसोसिएट होगा
मतलब मैंने MgCl2 ऐसा लिखा है ना बेटा, तो अगर ये कितना दिया वो लोग ने बेटा, 0.3 मोलार दिया, नहीं सॉरी 0.1 मोलार दिया था ना, तो ये डिसोसिएट पूरा हो जाता। तो Mg2+ कितना होता बोलो, 0.1। Cl माइनस भी कितना होता बोलो बेटा, आगे 2 है, सो 2 × 0.1। हमको इंटरेस्ट किस में है, Mg में या Cl में बोलो, हमको ढूंढना क्या है, Mg2+ ने, हिया बेटा, राइट, Mg। दूसरा क्या दिया बोल बेटा, सोडियम ऑक्सलेट। ये सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट है, सॉल्ट पूरा डिसोसिएट होगा, सिया बेटा, दिस विल डिसोसिएट कंप्लीटली। मुझे इसमें इंटरेस्ट किस में है, Na में या ऑक्सलेट में। अपने को फॉर्मूला में क्या चाहिए था, ये और ये दो चाहिए था ना, हाँ तो ऑक्सलेट। अच्छा, और इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया, कितना दिया था, 0.3। तो ये भी कितना होगा, 2 × 0.3। इसके आगे 2 था ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो खाली कितना होगा, तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दीज 2। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो दोनों का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा। अब समझा बेटा, Mg2+ का कितना था बोलो बेटा, 0.1 था कि नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 की हुआ, देखना, व्हेन द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इक्वली वॉल्यूम गेट्स व्हाट, एंड द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी व्हाट। तो Mg का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा बोलो बेटा, 0.1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। ऑक्सलेट का भी कितना होगा, 0.3 डिवाइड बाय, समझा क्या, बोलो, क्लियर है। तो देख, ऑक्सलेट का भी देख क्या हुआ, डिवाइड बाय। अब मुझे दोनों का वैल्यू मिल गया, अब मुझे ढूंढना क्या है, आईपी। आईपी में मुझे क्या करना था, मैंने आपको लिखवाया था, आईपी में मुझे क्या ढूंढने का है भाई, Mg2+ और किसका, तो Mg2+ का मुझे कितना मिला बोलो, ये देखना यहाँ पर कितना मिला, 0.1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, 0.05, बराबर है कि नहीं। इसका कितना हो गया, 0.3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, क्लियर है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए, आप अभी आप समझा, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, कुछ तुमको समझेगा नहीं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आता था बोलो बेटा, कितना जीरो है भाई, यहाँ पे 0.2 पॉइंट जैसे इससे मल्टीप्लाई कर देते थे बेटा, तो कितना जीरो आता था, रिफाइंड 15 कर कितना होता है, 75। 75 के आगे कितना जीरो है बोलो बेटा, 0.4 पॉइंट है ना, तो कितना हो जाएगा, 0.0075 आएगा ना बेटा, राइट ना। ये देख, अभी इसको उसमें कन्वर्ट कर, ये कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू, तो आईपी का वैल्यू मिल गया मुझे। व्हाट वाज योर केएसपी, कौन बड़ा है बोलो, ये देख केएसपी का वैल्यू कितना है, आगे का वैल्यू मत देखो, ये देख, ये 10⁻5 है, ये कितना है, तो कौन बड़ा होता है, -3, तो आईपी बड़ा है, तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, समझा, बोलो, इजी है कि नहीं, राइट। ये देख बेटा, अब समझा क्या, ये देख बेटा, एज आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। सेम सम है बेटा, और एक सिमिलर है, पूरा सेम देखना है, नीचे ही है, सॉल्व ही है, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे वो लोग ने वैल्यू दे दिया अपने को, क्या दिया है बोल बेटा, क्या क्या मिक्स किया है, सिड बेटा, बेरियम नाइट्रेट और किसको मिक्स किया है, पहले मैं पूरा लिख के बताता, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम का वैलेंसी 2 है, और क्या दिया है, हाँ, और सोडियम फ्लोराइड। अब बेटा दोनों का पार्टनर चेंज कर, बेरियम किसके साथ जाएगा, फ्लोरीन हो जाता, तो ये क्या बन जाएगा, बेरियम फ्लोराइड, NaNO3, ये ट्वाइस का। अपने को इंटरेस्ट किसमें है, बेरियम, अरे केएसपी किसका दीपू दिया है वो लोग ने, बेरियम फ्लोराइड का दिया है ना, तो बेरियम फ्लोराइड का दे दिया मैंने, इजी। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा, अच्छा बेरियम फ्लोराइड का आई वांट टू फाइंड व्हाट बेटा, आयनिक प्रोडक्ट। बेरियम फ्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा, एंड, बराबर है कि नहीं। अच्छा, ये आईपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेरियम फ्लोराइड के लिए क्या करूंगा, आगे कोई नंबर है, कितना है, तो अभी तुझे क्या क्या ढूंढने का है, बेरियम का वैल्यू, किसका वैल्यू, बेरियम कितना है वो ढूंढना पड़ेगा, और फ्लोराइड कितना है, बरोबर है। तेरे को कहाँ से मिलेगा ये दोनों,
बोलो ना, कहां से मिलेगा ये दोनों? अरे देखो ना, यहाँ पे दिया है ना वो लोग ने, बेरियम नाइट्रेट। तो बेरियम नाइट्रेट टू अगर डिसोसिएट करेगी तो तेरे को क्या मिलेगा बोल? अरे पानी में डालेगी तो क्या मिलेगा? बेरियम एंड बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन वो लोग ने कितना दिया था बोलो बेटा? 20 cm³ ऑफ हाउ मच बेटा? 0.05 बोला। बरोबर है? क्लियर है? तो 20 cm³ ऑफ 0.05, तो कॉन्सेंट्रेशन तेरा इसका कितना हो जाएगा बेटा? अरे यार इतना पकाया है दोनों दोनों का 20-20 है ना बेटा। तो वो ज्यादा सोचो मत बेटा, दोनों का 20-20 है ना बेटा, तो वापिस ये भी क्या हो जाएगा? हाफ ही होगा। क्या होगा? अबे 1 लीटर और 1 लीटर मिक्स करते तो ये वैल्यू तुमको कंफ्यूजिंग लगेगा बेटा। ये विल गेट कंफ्यूज इन दिस, इतना मत देखो ये वैल्यू। ये पकाओगिरी क्या है, इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे, मैं तुमको बताता हूँ। ए, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया इसका बता मेरे को। हाँ तो बेरियम, इसमें बेरियम कितना है तेरा? 0.05। और दूसरा क्या दिया था? सोडियम क्लोराइड हाँ तो सोडियम फ्लोराइड का कितना दिया था बोलो बेटा? 0. कितना दिया बोलो? 0.0 0.02। Na+ मिलता था और क्या मिलता था? 0.020। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा कि नहीं? दोनों को मिक्स करोगा तो ये कंफ्यूजिंग है, ये देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मत लिखो। क्या करोगे? इज्जत से क्या कर देने का था बेटा आप लोगों को यहाँ पर? 0.05 का हाफ तो कितना हो जाता बोलो बेटा? और यहाँ पे कितना दिया था? 0.020, उसका हाफ zero. 1। बस हो गया। अभी वैल्यू डाल देते इधर पे, चलो। लेकिन ध्यान रखना, ये वैल्यू डालेंगे तो क्या करोगे बोलो? हेलो, बेरियम का वैल्यू कितना है यहाँ? और ये बेरियम नाइट्रेट नहीं लिखने का था यहाँ पे, पागलगिरी किया है, आप ऐसा लिखो शे, By God. बेरियम। और ये क्या दे रहा? फ्लोराइड। एरर है वो बेटा, ठीक है ना? ए, बेरियम का वैल्यू कितना है बे सक्षम? 0.0 हाँ। फ्लोरीन का कितना है? पॉइंट लेकिन इसके आगे पावर कितना है? समझा क्या? थोड़ा पेंसिल से आपके दिमाग में डालने के लिए चाहिए, मैंने जैसा दिया रहता है, पहले इन दोनों को मैंने मिक्स किया, मुझे ये दो मिला, बराबर है? फिर मुझे क्या ढूंढने का था? बेरियम फ्लोराइड। ये बेरियम फ्लोराइड बना ना, तो ये मैंने डाला। फिर आयनिक प्रोडक्ट बेरियम, अभी मैंने बेरियम का कैसे ढूंढा यहाँ पर? फ्लोराइड का कैसे ढूंढा, समझा ना? अब वो वैल्यू यहाँ पे डाल के सब्स्टिट्यूट किया, अभी आगे सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा मुझे बताओ? 0.025 इंटू, अरे बोलो ना, 0.025 और 0.01 इंटू 0.0, दो बार हो गया क्या नहीं स्क्वायर मतलब? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 इंटू 10⁻⁻³ ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻²। ये क्या हो जाएगा? तो मुझे कितना मिलेगा? विच इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ हो गया ना बेटा, ये देख। देयरफॉर आईपी इज हाउ मच? 25 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा ये? -7 ना? इसको 6 के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -6। अब यहाँ पे कितना दिया है? ये भाई ये भी 10⁻⁻6 है, लेकिन ये 1.7 है, और ये कौन है? तो कौन सा वैल्यू बड़ा है? आईपी इज बिगर। प्रेसिपिटेशन विल, यहाँ पे पीछे ऐसे तो आपको समझेगा नहीं बेटा, ठीक है ना? हाँ। ब्रेक नहीं आएगा, मैं ब्रेक देता हूँ 5 मिनट का, फिर तुम लोग को जल्दी छोड़ दूंगा बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी। जल्दी मतलब वही 3:30 तक कर दूंगा, 3:30 3:45, ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ बोल बेटा? तो कौन बड़ा है? आईपी बड़ा आईपी इज बिगर देन केएसपी। ठीक है, टेक्स्ट बुक का वो सोल्यूशन समझेगा नहीं ना बेटा, यू गॉट इट ना बेटा? ए समझाना पूरा, एक एक स्टेप बताया पूरा। अब बेटा मैं तुम्हारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा आज।
ये पूरा हो गया था तो लास्ट कौन पार्ट सा? फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन का फिर देन सॉलिड स्टेट है नहीं सॉलिड स्टेट हो गया अपना सोल्यूशन बाकी है ना आई डिड सोल्यूशन मतलब आप लोगों का मैंने केमिकल काइनेटिक्स कर दिया सॉलिड स्टेट हो गया अब हमको क्या पढ़ना है हाँ सोल्यूशन हाँ सोल्यूशन सेकेंड चैप्टर हाँ पहले ब्रेक दूंगा बेटा हाँ बी दे रहा हूँ बाहर मत जाओ बेटा बस कुछ खाने बाने के लिए मत जाओ ये आप लोग कॉपी कर लो ठीक है ना मैं इसको हाँ अभी अपने को ऐसे भी इसको हाँ ये करना पड़ेगा अरे यार कॉलेज में तुम्हारा कैसा हेलोजन डेरिवेटिव वो लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का टॉपिक नहीं मैं पहले सोल्यूशन का ये सॉलिड ये तो सोल्यूशन स्टार्ट कर देता सोल्यूशन सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है आज मैं खाली तुम लोगों को स्टार्टिंग का बेसिक्स ही करा होगा खाली आज मैं खाली तुम लोग को वही पढ़ा होगा जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था ठीक है ना ओके इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा पॉज